मित्रों, आज दो मुख्य विषय हैं जिस पर कि पार्टी की तरफ से हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो प्रथम संदर्भ में श्री जीवीएल नरसिम्हा राव अपना वक्तव्य देंगे। सुधांशु जी। The first issue that we are going to talk about is about the corruption that occurred during the successive Congress regimes, which continues to shame India, even as Prime Minister Shri Narendra Modi has been presenting a shining India to the world, has ensured that India's image has gone up all over the world, but we continue to have scandals of the Congress era surfacing repeatedly, which continue to damage brand India. Congress is synonymous with corruption. I think that's the verdict of the people of the country. And INC, for the vast masses in this country, stands for India's naturally corrupt party. The revelations about the bribes paid by retail giant Walmart to various officials to the tune of millions of dollars, I think something that has been revealed by US federal government's probe has hit the headlines in the international newspapers. Coupled with this, the revelations that came in 2012, that 125 crores of rupees were incurred as expenses by Walmart for lobbying entry into India's multi-brand retail market. I would like to jog your memory back to 2007, and these 125 crores of rupees as lobbying expenses for entry into the Indian market were incurred between 2008 and 2012 November, December. And this is exactly the period which the government of the day at that time, that was the time it took actually to convert, to get this FDI in multi-brand retail passed in both houses of parliament. In 2007, Congress President Mrs. Sonia Gandhi wrote a letter to Manmohan Singh expressing concern that entry of multi-brand retail would seriously impinge on the livelihoods of neighborhood stores, nearly 40 million people who are dependent on this, this trade. And she said our government must provide for all safeguards before we actually contemplate any move towards multi-brand retail. Forget about any safeguards. Nothing was done on this count. And 4 years later, after the Walmart has spent 125 crores in lobbying expenses, the Congress government pushed through the FDI bill in Parliament, not yielding any opposition, and in fact, majority of Parliament did not even pass it. They had ensured that several people were forced into, some parties were forced to stage a staged walkout, and the bill was pushed through. So the whole thing reeks of another scam that had occurred during the UPA era. I think they have crores, hundreds, lakhs of crores of corruption was engaged in on the domestic front, be it in the coal scam, in the spectrum scam, but they continue to shame India all over the world with these repeated exploits all over the world. You have the international newspapers, the top ones reporting Wall Street scam yesterday. You had how
the Augusta Westland helicopter purchases, how a 3,600 crore deal was deeply mired in corruption and bribery. The government was forced to cancel the contract when the UPA was in office. And the middlemen, a large number, some of them including foreign nationals, with alleged connections to the members of the Congress's influential, face serious investigation. A court, a CBI special court, has issued non-bailable warrants only a couple of weeks ago. And throughout Europe and their own homeland, their own, and even in Italy, India's image had suffered a huge knock. And if you look back, all this started from Rajiv to Rahul Gandhi era, the Congress party had indulged in a spate of corruption scandals that have affected brand India. So I think the Congress party deserves an apology to the people of this country for having not only knocked down its image while they were in power, but continue to shame India with their corrupt exploits during their several decades of office in the country. I think this is a part of my first statement. Maybe I can take questions after Sudhanshu ji makes his statement. Yeah. Yeah. भारत की जनता बखूबी जानती है कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस, भ्रष्टाचार का नाम है कांग्रेस पार्टी। आईएनसी उनके पार्टी के नेताओं के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, बट लेकिन इस देश की जनता के लिए इंडियाज नेचुरली करप्ट पार्टी के रूप में जनता इनको देखती है। जब तक ये सत्ता में रहे, कई दशकों तक सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, भारत की छवि विश्व में एक खराब इमेज भारत को देने में, एक खराब नाम देने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जिम्मेदार है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 17-18 महीनों में भारत की छवि पूरे विश्व में एक शाइनिंग इंडिया के रूप में, एक साफ सुथरी देश के रूप में, एक विश्व के इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, जो एफडीआई इनफ्लोज हो, हर दृष्टिकोण से देखें तो भारत की छवि, भारत की ओर पूरे विश्व देख रहा है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के काम हुए हैं, जो जिस प्रकार के गलत काम हुए हैं, उनकी जो इको, उनकी जो आवाज आज तक पूरे विश्व में सुनाई देता है। कल विश्व के बड़े-बड़े अखबारों में, खासकर अमेरिकन मीडिया में, ये बड़े-बड़े खबरें छापे गए कि भारत में वॉलमार्ट ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स भ्रष्टाचार ब्राइब्स पे किया है, क्योंकि उनको भारत में काम करने के लिए ऐसा करना पड़ा है। और पहले 125 करोड़ रुपए उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक लॉबिंग एक्सपेंसेस उन्होंने किया है। इस प्रकार की जानकारी खुद वॉलमार्ट ने 2010 के दिसंबर में दिया था। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और उनके सरकार उस समय एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल को पुश किया था पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, और उसके ठीक 3-4 साल पहले जिस प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखकर छोटे दुकानों के लिए और उनके रोजगार पर किसी प्रकार का असर ना हो, उसके लिए बहुत सारे विकल्प तैयार करने के लिए जो सुझाव दिया था,
ऐसा कुछ नहीं किया गया, उसके बावजूद उस कानून को पारित किया गया। क्या ये जो लॉबिंग एक्सपेंसेस की जो बात हो रही है, जो 125 करोड़ रुपए जो वॉलमार्ट ने खर्च किया है, क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए खर्च किया गया? ये सवाल उठना जायज है। और अगस्ता वेस्टलैंड की जो डील हुई है, जो 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए, इसकी जानकारी भी, जैसा बोफोर्स की जानकारी स्वीडिश रेडियो के माध्यम से पता चला, भारत की पूरी जो छवि विश्व में खराब हो गई, उसी तरह हमें वॉलमार्ट के बारे में अमेरिका से पता चल जाता है, और वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर के मामले में हमें यह जानकारी इटालियन इन्वेस्टिगेशन से मिलता है। पूरे विश्व में किसी भी शायद देश को नहीं छोड़ा है कांग्रेस पार्टी। मैं वोल्कर स्कैम की जिक्र नहीं कर रहा हूं, इराक की जिक्र नहीं कर रहा हूं, शायद ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा जहां इस प्रकार की भारत की भ्रष्टाचार की कोई सुराग वहां नहीं छोड़ा हो। तो इसलिए और जो अगस्ता वेस्टलैंड केस में जो लगभग 360 और उससे ज्यादा करोड़ों की जो उसमें मिडिलमैन को पे किया गया, मिडिलमैन को के साथ इस प्रकार कोई एग्रीमेंट हुआ है, ऐसे कई सारे पत्र सीबीआई के हवाले, सीबीआई के जानकारी में है। उनमें कुछ फॉरेन नेशनल्स के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई कोर्ट के माध्यम से नॉन बेलेबल वारंट्स भी इशू किए गए। खबर गौरतलब है कि इसमें कई लोग ऐसे लोग हैं जिनकी कांग्रेस नेताओं के उठना बैठना, मिलकर विश्व में घूमना, ऐसे बहुत सारे जानकारियां हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का यह अधिकार नहीं बनता है कि भारत को जलील करते रहें। उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी एक और प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में भारत की इज्जत को बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सत्ता छोड़ने के बाद भी भारत की छवि को, भारत की इमेज को धक्का पहुंचने में लगी है। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रेस वक्तव्य में भारत में वर्तमान में हो रही कुछ घटनाओं के विषय में चिंता व्यक्त की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि हमारी पार्टी की सरकार उस पर प्रभावी क्रिया और बयानों में उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। उन्होंने भारत की सहनशीलता और धर्मनिरपेक्षता का हवाला दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हमारे शीर्षस्थ नेता बिहार को ध्यान में रख के बयान दे रहे हैं, और उन्होंने कुछ इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जैसे कि भारत में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो पूर्व में नहीं हुआ। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की यह बात फैक्चुअल और हिस्टोरिकल, यानी तथ्यात्मक और ऐतिहासिक दोनों संदर्भों में पूर्णतः गलत है। जिन घटनाओं का वह उल्लेख कर रहे हैं उसमें से लगभग सभी घटनाएं उनके अथवा उनके सहयोगियों के शासनकाल में और शासित राज्यों में हो रही हैं। श्री कुलबर्गी की दुखद हत्या कर्नाटक में हुई। कर्नाटक सरकार ने आज तक उस पर क्या प्रतिक्रिया की है, यह उत्तर कांग्रेस को देना चाहिए। श्री दाभोलकर की दुखद हत्या जब महाराष्ट्र में हुई तो केंद्र और प्रदेश दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने इस पर क्या अभी तक कार्रवाई की थी, यह जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। यहां तक कि जिन संस्था के संदर्भ में वह आरोप लगाया गया था, आप याद करिए कि कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री का ही वक्तव्य है कि तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस संदर्भ में गंभीर नहीं थे। यह है यथार्थ। हिमाचल की घटना हुई, वहां कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में घटना हुई दादरी की, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है जो कांग्रेस की सहयोगी रही। उत्तर प्रदेश की घटना के संदर्भ में हमारी सरकार की संवेदनशीलता इसी से स्पष्ट थी कि तत्काल गृह मंत्रालय ने उस पर रिपोर्ट मांगी, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की,
वित्त मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने उस संदर्भ में प्रतिक्रिया भी व्यक्त की और भर्त्सना भी की। परंतु यथार्थ यह है कि जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, उसमें जो मीडिया में उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार कुछ भी वो नहीं है जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसके बावजूद विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री के स्तर से भी प्रतिक्रिया की गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यथार्थ रूप में सभी घटनाओं का क्रमशः और राज्यवार विवेचन करके देख ले तो कांग्रेस को और उसके सहयोगियों को अपने ही गिरेबान में झांकने की आवश्यकता होगी। और देश के जिस माहौल की वो बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि 1984 में सिखों का जो कत्लेआम हुआ, शायद नादिर शाह के बाद, जो 1739 में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा कत्लेआम वही हुआ होगा। 1990 में के दशक में जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को माइग्रेट करके कश्मीर छोड़ना पड़ा, शायद देश के विभाजन के बाद सबसे बड़ा एक्सोडस या जेनोसाइड, यानी जनसंख्या का सबसे बड़ा विस्थापन उसी समय में हुआ होगा। 1987 का हाशिमपुरा मलियाना का कांड, जहां पर कि यह आरोप था कि पुलिस ने खड़े करके एक समुदाय को गोलियों से उड़ा दिया, जिसकी जांच तक नहीं हुई। 1993 के मुंबई के रॉयट्स तो छोड़ दीजिए, जो कुछ हुआ हाल ही के इतिहास में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों पे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, तत्कालीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या तत्कालीन केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी या रिपोर्ट मांगी थी? नहीं, बल्कि उल्टे मारे गए लोगों की सूची संप्रदाय के आधार पर जारी कर दी थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं का यथार्थ ज्ञान और काल ज्ञान दोनों ही गलत है। Their entire wisdom, whether it is factual or historical, is perverted. उसके बाद उन्होंने यह कहा कि हमारे तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो बिहार को ध्यान में रख के दिए जा रहे हैं, जबकि हमारे सभी नेताओं के बयान तथ्यात्मक थे और वस्तुपरक थे। ऑल वर फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। और मैं पूछना चाहता हूं कि उनके शीर्षस्थ नेता, यदि हमारे नेता, उनको लगता है कि बिहार को ध्यान में रख के बोल रहे हैं, तो आपके तो शीर्षस्थ नेता ध्यान करने ही विदेश चले जाते हैं। गए थे पिछले वर्ष, फिर ज्ञान प्राप्त करने विदेश चले जाते हैं। अभी सुन रहे थे, दिखाया गया था चित्र में। तो इस संदर्भ में भी ज्ञान और ध्यान कहां से प्राप्त हो रहा है, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तीसरा, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि सहनशीलता और पंथ निरपेक्षता का उपदेश देने का प्रयास किया था। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हमारा वैचारिक अधिष्ठान जिस विचारधारा से प्रेरित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भी जीवन शैली माना है, उसकी सहनशीलता यह है कि हमने सिर्फ अपनों को नहीं, परायों को भी, देशियों को नहीं, विदेश से आए लोगों को भी, सबको समाहित किया। जिन्होंने आक्रमण भी किया इस देश पर, वो सब भी आके समाहित हुए। कभी हमने मानव मात्र में भेद नहीं किया। अटल जी की कविता की उस पंक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा, जो इसी विचारधारा के लिए है कि मैंने छाती का रक्त पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर विशाल। और उसी विचार का पालन करते हुए हमने 60 साल राजनीति की और आपातकालों से लेकर कारागार की यातनाओं तक सब कुछ सहा। तो सहनशीलता का विचार और सहनशीलता का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े लोगों में
सांगोपांग रूप में है। समस्या यह है, इट इज इन टोटलिटी। समस्या यह है कि कांग्रेस को प्रतिपक्ष में रहने का अभ्यास नहीं है, इसलिए उनकी बेचैनी, उनकी व्यग्रता बार बार इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में सामने आती चली जाती है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय का प्रतिकार दुष्प्रचार से लेना चाहती है। वो सियासी शिकस्त का इंतकाम इस ढंग के मिस प्रोपोगंडा से लेना चाहते, तो उनका आधार प्रेजुडिस है और मॉडस ऑपरेंडी प्रोपेगेंडा है। इसलिए अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस फैक्चुअली रॉन्ग है, हिस्टोरिकली रॉन्ग है, प्रेजुडिस से ग्रस्त है और प्रोपेगेंडा का उपयोग कर रही है। एक भी बात का तथ्यात्मक, युक्ति संगत, तर्क संगत उत्तर न आज की घटना का उनके पास है, न इतिहास की घटना का। धन्यवाद। देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में हमारी पार्टी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट करा जा चुका है। आज भी अरुण जेटली जी का वक्तव्य है कि इस प्रकार की किसी भी हिंसात्मक प्रतिक्रिया का हम पूर्णतः खंडन करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जहां तक हरियाणा की घटना की बात है, तो उस बारे में सरकार की तरफ से विवेचना की रिपोर्ट आने के बाद प्रतिक्रिया की जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह जातीय है या व्यक्तिगत है, यह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। और जहां पर रिपोर्टें उपलब्ध है, वहां प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? दादरी की रिपोर्ट उपलब्ध है, बयान तो आजम खान जी देते हैं यूनाइटेड नेशंस में जाने का, और रिपोर्ट में तो कम्युनल एंगल ही नहीं है। यथार्थ ये, प्रतिक्रिया ये असली चेहरा है। No, it was not appropriate that we have not given any comment. There was a proper reaction from the finance minister and also from the home minister. And we were also in the government, so we were waiting for the report from the UP government, which is categorically clear that nothing of this sort, as if in total contrast with what is projected in media. देखिए, जिस प्रकार के वक्तव्यों की आप बात करते हैं, उन वक्तव्यों के संदर्भ में पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेता एक नहीं कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। न वो पार्टी का मंतव्य है, न पार्टी इस बातों से सहमत है। और आप लोग ही किस प्रकार के फ्रेज यूज करते हैं, फ्रिंज एलिमेंट। मैं पूछना चाहता हूं, आजम खां के बयान का खंडन किया है सपा ने आज तक? नहीं। आर दे फ्रिंज एलिमेंट? दिग्विजय सिंह के बयान का कोई खंडन किया है कांग्रेस ने आज तक? नहीं। तो हमारी तरफ से तो बयान भी किस स्तर से है और खंडन किस स्तर से है, वहां ना कोई खंडन है बल्कि उसका महिमा मंडन है। As far as Mr. Khattar is concerned, he himself, his government, his office has clarified the thing. And he has also expressed that even if something of this sort which people have thought reflects, he is having regret.
It's ineffectual. So today we are talking about the corruption. We are talking about the corruption. Now no, that's only. Has any proposal been cleared? Has any proposal been cleared? No, no. I think it's ineffectual. So yes. So what? What is important? Whether it takes effect or not. It is no proposal has been cleared, nor will any proposal be cleared when the BJP is in office. It's as simple as that. We are opposed to, our position on multi-brand retail remains unchanged, but we are today discussing about corruption. We are not discussing about policy. We are discussing about the corruption and the needle of suspicion that points towards a change in Congress party's stance from 2007, the letter of Mrs. Sonia Gandhi asking for a review, asking for safeguards to be put in place, and the time it was passed in Parliament. I am demanding them, the Congress party, to come out with what safeguards have they created. What cushion have they created before they got this passed? So why did Sonia Gandhi change her mind? Was it Walmart's lobbying efforts that resulted in change of mind? I think obviously you don't expect a top leader, a party, to change its position without any valid reason. Let them come up with safeguards. I'm demanding explanation from them. They have done nothing except engaging in efforts. Yeah. Yeah. Ek minute. That I think I think leave that wisdom to the government. Yeah. I think we should not make statement. I think anything concerning Arvind Kejriwal, our Delhi party unit, media unit will comment on this. We talk about national issues here. Yeah. Huh? Yeah. ये दोनों पार्टियों के अपने अपने चरित्र को दर्शाता है और इस विषय में विस्तार से आप दिल्ली प्रदेश से प्रतिक्रिया ले सकते हैं। The Walmart itself is on record. They have placed it. This is not any investigation. Walmart has itself told the US federal government that they spent 125 crores on lobbying efforts. Okay, we just want to expose, because we are talking about lakhs of corruption here. The Congress party is quite, I think, has not accounted for lakhs of crores of corruption. We only want to expose the Congress party today, and we certainly will welcome any further details coming from the US investigations. If they tell us, if we have specific information as to who were the middlemen, who were the individuals that were paid, obviously government will consider that. नहीं, देखिए, मैं इस संदर्भ में आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है महाराष्ट्र में, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने भी उसका खंडन किया है और केंद्रीय स्तर से भी पार्टी के द्वारा खंडन किया गया है। हाँ, जहां तक आप कह रहे हैं कि देश के लिए एम्बेरसमेंट की बात है, तो मैं बार बार पुरानी चीज में नहीं जाना चाहता, पर एम्बेरसमेंट ये नहीं, एम्बेरसमेंट वो थे जब संसद के हमले के लोगों को भी माफी देने के लिए लोग आके राष्ट्रपति से गुहार लगाते थे, या भारत का
गृह मंत्री कोई बयान देता था जिसपे हाफिज सईद बाहर से शाबाशी देता था। इसलिए देश के एम्बैरेसमेंट का युग समाप्त हो चुका है, अब ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, कुल मिलाकर महंगाई की दर, मुद्रास्फीति की दर कम हुई है। पिछले कुछ महीनों में लगातार कम हुई है। दो विषयों को छोड़ के, एक दाल और एक प्याज के विषय को। दाल के संदर्भ में विगत कई वर्षों से दाल का उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता रहा। पिछले ही वर्ष में 2000 मीट्रिक टन कम हुआ है। लगातार दूसरा वर्ष ऐसा है जब मानसून अपेक्षा से कम आया और मार्च और अप्रैल के महीने में जिस प्रकार की वर्षा और ओलावृष्टि हुई वो पिछले लंबे समय से कभी नहीं हुई थी। इस कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि विशेषकर दाल के संदर्भ में, मगर सरकार इसके लिए प्रभावी स्तर पर कई कदम उठा रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में उसके ऊपर नियंत्रण होगा और मूल्यों में कमी आने की है प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज भी समाचार पत्रों में उसका उल्लेख है। राष्ट्रपति का जो भी वक्तव्य है तो वह तो सर्वोच्च स्तर पे है, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना हम उचित नहीं समझते। As per the reports in some international media, India is become the topmost investment destination in the world. So I think the question is self-contradictory. नहीं, पार्टी सभी नेताओं का, सभी हमारे प्रमुख लोगों का पूरा समुचित सदुपयोग जो है वो कर रही है। सब अपने अपने स्तर से पार्टी के विजय के अभियान में लगे हैं। हो गया। देखिए क्या किसी सरकार की एफर्ट्स के कारण क्या प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है और हमारे सबसे प्राथमिक प्रॉमिस भी था मैनिफेस्टो में, महंगाई का दर को नीचे लाना। अभी महंगाई का दर पिछले 8 महीनों में लगातार होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव टेरिटरी में है और -5% तक जा चुकी है और जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है, जो आम मतदाता, आम कंज्यूमर को जो अफेक्ट करता है, वो 3-4% के करीब है। क्या ये सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो इंडिपेंडेंटली अपनी निर्णय करता है, लगातार जिस प्रकार इंटरेस्ट रेट्स को घटाया, क्या इस बात की ओर दर्शाता नहीं है कि देश में महंगाई का दर बहुत कम हो गया है? एक दो विषयों में, जैसा सुधांशु जी ने कहा, एक दाल और ऑनियंस में उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है, लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है महंगाई को रोकना। तो जो दाल की जो आप भाव की बात कर रहे हैं, जो अभी रिटेल मार्केट में आज के दिन 120-130 रुपए में उपलब्ध है, जो बहुत ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में इसमें बहुत बड़ी कमी होगी, ऐसा हमें पूर्ण उम्मीद है। नहीं, अभी पता करके आ रहा हूं मैं दुकान से पता करके आपको बता रहा हूं। नहीं, आप मीडिया में खबरें दुकान पे जाकर चलाइए, आप कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में सुनकर मत चलाइए, आप दुकान पे पता करिए। देखिए, महंगाई पर नियंत्रण एक प्रत्यक्ष है जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक विषय पे हम
स्वीकार करते हैं जो चीज है उसके लिए सरकार प्रभावी नियंत्रण कर रही है, पर यह समझ लीजिए दाल का इश्यू उठाकर कांग्रेस अपनी दाल नहीं गला सकती। चलिए, थैंक यू।